अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। જે ભાવમાં તમે કર્મ બાંધી શકો છો અને ચારે ગતિમાં ફરી શકો છો, એ જ ભાવની અંદર બધા કર્મો ખલાસ કરી અને મોક્ષે પણ બંને અહીંયા છે। મુક્તિ પણ અહીંથી મળે અને ચારે ગતિમાં ફરવાનું પણ અહીંથી જ મળે। બીજી મનુષ્ય ભાવ સિવાય પશુ યોની, નર્ક ગતિ, દેવ ગતિ એ ખાલી કર્મ ભોગવવાના સાધન છે, પ્લેસ છે। ત્યાં કર્મ બંધાતા નથી અને ત્યાંથી મુક્તિ પણ નથી। સમજી ગયા? આ જન્મમાં કરેલા કર્મનું ફળ આ જન્મમાં મળી શકે ખરું? એ પૂર્વ જન્મનું જ ફળ આપણે ભોગવીએ છીએ। પહેલી વ્યાખ્યા સમજો, કર્મ કોને કહેવાય અને કર્મ ફળ કોને કહેવાય? પેલી વ્યાખ્યા સમજો। આપણને જો કર્મ અને કર્મ ફળની વ્યાખ્યા જ ખબર। કર્મ ઇનવિઝિબલ છે, કર્મ ફળ વિઝિબલ છે। લાઈન ઓફ ડિમાર્કેશન, કર્મ ઇનવિઝિબલ છે અને કર્મ ફળ વિઝિબલ છે। સમજી ગયા? એટલે આ અવતારમાં જે કરો છો એ બધું કર્મ ફળ। ભણો તે કર્મ ફળ, એક્ઝામ આપો તે કર્મ ફળ, રિઝલ્ટ આવે તે કર્મ ફળ, પાસ થાઓ તે કર્મ ફળ, ફેલ થાઓ તે કર્મ ફળ, નોકરી ધંધા કરો તે ફળ કર્મ ફળ, જન્મો જીવો મરો બધું કર્મ ફળ। ફિઝિકલ એન્ડ વિઝિબલ, કર્મ ઇનવિઝિબલ છે। કર્મ બાંધો છો એ દેખાતા નથી, કર્મ ફળ દેખાય, કર્મ ના દેખાય। કર્મનું ફળ કુદરત નક્કી કરે। કોણ નક્કી કરે? સમજાય છે? જન્મ એટલે મા બાપ તૈયાર જ હોય, આપણે ગોતવાના બોલતા નથી, તૈયાર જ હોય। કર્મ ફળ, ફળ આપવાની જવાબદારી કુદરતની છે, કર્મ બાંધવાની જવાબદારી તમારી છે। જેવું કર્મ બાંધશો, દેવલોકનું કર્મ બાંધો, દેવલોકે મળે, કુદરત આપે। આપણે નક્કી નહીં કરવાનું કે પાસપોર્ટ છે કે નહીં, ટિકિટ છે કે નહીં, પ્લેન ક્યારે આવશે, નક્કી જ નહીં કરવાનું। બધું કોણ કરે? ત્યાં રહેવાનું સાથ બધું જ હોય, તૈયાર જ। આપણે કશું પ્લાન કરવાનો? સમજાય છે? કર્મ એ ઇનવિઝિબલ છે અને કર્મ ફળ એ વિઝિબલ। કર્મ ભાવથી બંધાય છે અને કર્મ ફળ મન વચન કાયાથી ભોગવાય છે। મન વચન કાયાનો જન્મ જીવન મૃત્યુ કુદરતના હાથમાં છે અને કર્મ તમારા હાથમાં છે। એટલે ફળને બદલી ના શકાય। એટલે રામાયણ ને મહાભારત થવાની હોય તો થાય જ, મહેનત ગમે એટલી કરો તો પણ, કારણ કે કર્મ નક્કી થઈ ગયું છે। હવે આ શું છે? ફળ બદલી શકાય? ક્યારે? આપણા વાળા તો બહુ બુદ્ધિશાળી છે। એક છોકરો હતો, તે 5મા ધોરણમાં ભણતો હતો, 5th સ્ટાન્ડર્ડમાં। એ એક્ઝામ આપીને પાછો આવ્યો એટલે એના ફાધરે પૂછ્યું કે બેટા પેપર કેવું ગયું? તો કે સારું ગયો। તો એના ફાધરે પૂછ્યું પાસ તો થઈ જ ને? તો કે પાસ પણ થાય એવું લાગતું। એટલે ફાધર તો ગુસ્સે થઈ ગઈ કે તમારી ફી વગાડી ગયા છે બધી। પછી એ છોકરો મધર પાસે ગયો, તે મધરે પૂછ્યું કે બેટા તારું પેપર કેવું ગયું? તો કે છે મમ્મી સારું નથી ગયું। તો મમ્મી શું કહે? તું નિરાશ ના થઈશ। તું કે છે તારું પ્રશ્નપત્ર ક્યાં છે? તો કે આ રહ્યું, પેલા ભગવાનનો ફોટો છે ત્યાં મૂકજે, રોજ અગરબત્તી દીવો કરજે, એક એક માર્ક વધશે। બોલતા નથી। આવી રીતે દુનિયા ચાલે છે। થાય ફેરફાર? શ્રદ્ધા શું કરે? પરિણામ ક્યારે બદલાય? સમજાયું કે ના સમજાયું? આવું છે, દુનિયાના લોકો મહેનત કરે છે પણ એ મહેનતને મહેનત નથી કહેવાતી, કારણ કે પરિણામ ફિક્સ થઈ ગયું છે। સાહેબ, તમને ખબર હશે, બધા ભણેલા ગણેલા છો, કે તમારા કરતા વધારે મહેનત કરનારો આજે પ્રાઇવેટ જોબ કરતો છે અને તમે ઓછું ભણેલા ઓછા માર્ક વાળા પણ ગવર્મેન્ટની જોબમાં સારી પોસ્ટ પર છો। યસ કે નો? આ કર્મના ખેલ છે સાહેબ। પંચ ઇન્દ્રિયમાંથી ઓછી ઇન્દ્રિયમાં બોન્ડ થઈ શકે થાય? એક ઇન્દ્રિયમાં થાય, 1 2 3 4 5 બધા, પણ ત્યાંથી પાછા આવવાનું। પછી પેલી પ્રોસેસ નહીં, પહેલી જ વખત
लॉ ऑफ इवोल्यूशन पास करવાનું ફર્સ્ટ ટાઈમ યુ આર કમિંગ ઇન અ હ્યુમન લાઈફ યુ હેવ ટુ પાસ થ્રુ ધ 1 to 5 સેન્સ ફર્સ્ટ ટાઈમ ઓકે નેક્સ્ટ ટાઈમ તમે મનુષ્યમાંથી એકે જ રહેવા જાઓ તો એ પ્રોસેસની જરૂર નથી પછી કર્મનું ભોગવા ગયા એ કર્મ પર જેને પાછું એક વખત પાસ થવું પડે કુદરતની એક્ઝામમાં બધી સાયન્સીસમાં आपका ऐसा कहना है कि पैसे से सुख नहीं मिलता है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में देखें तो पैसे से सुख मिलता है, चाहे टाइम भी मिलता हो। हमने यहाँ से भरूच से अहमदाबाद जाना है, तो गवर्नमेंट की बस भी है और वोल्वो भी है, तो वोल्वो में जाते हैं तो पैसे थोड़े ज़्यादा लगेंगे लेकिन सुख मिलता है। ओके तो पैसे का इम्पोर्टेंस तो लगता है कि है। The money they give you the service and facility is not happiness. પૈસાથી તમે 10 કરોડ રૂપિયાનો બંગલો લઈ શકો પણ હેલ્થ અને ઊંઘ જરૂરી નથી કે આવે બોલતા નથી પૈસાથી તમે મીઠાઈ ને સારી સારી વસ્તુ નટ્સ ને બધું ખાઈ શકો પણ ડાયજેસ્ટ કરવું એ તમારા હાથમાં નથી ઇસીલિए happiness is not given by the money. The money give you the services and facilities. If you have a more money, you give a good facilities. And if you are normal money, you give services. कि आपको जीवन जीने के लिए जो साधन चाहिए वो आपको मिलेगा. If you are normal money, excess money है तो आप स्पेशल चीज ला सकते हैं, like a facility. हम चल के भी जा सकते हैं, रिक्शा में भी जा सकते हैं, बस में भी जा सकते हैं, कार में भी जा सकते हैं, प्लेन में भी जा सकते हैं, ट्रेन में depend on money. But they give the facilities, not happiness. So see, अगर आपके पास बहुत कम पैसे हैं तो आप सस्ते कपड़े लोगे, ज्यादा पैसा है तो अच्छे कपड़े लोगे, डिजाइन, क्वालिटीज, whatever it is. But they give you the facilities, not happiness. Yes or no? Yes. ये बहन लोग डायमंड की ज्वेलरी पहनेंगे, उनकी कीमत 10 लाख की होगी. एग्जाम्पल, डायमंड एंड गोल्ड प्योर उनकी पूरी ज्वेलरी पहनी है तो उनकी कीमत 10 लाख होगी. उसका मतलब नहीं है कि वो पहन के हैप्पी है, बोलते नहीं है. कुछ टाइम के लिए हैप्पी, कुछ टाइम के लिए नहीं, मगर वो कुछ टाइम के लिए नहीं पहनती, वो तो पूरी शादी में पहनती है. मगर शादी में पहनने के बाद किसी ने वेलकम नहीं किया तो आनंद देखो. तो भी डायमंड ज्वेलरी तो पहनी है तो फिर क्यों चला गया? ये सब मेरी पैसा हैप्पीनेस नॉट फैसिलिटी. पैसे से सुख नहीं, सर्विस मिलती है एंड फैसिलिटी. टाइम बीइंग सुख, वो भी माना हुआ, माना है तो नहीं तो नहीं. आदमी मानता है. नहीं नहीं, मैं इंसान की, कॉमन इंसान की बात करता हूँ. आप जो ज्वेलरी शॉप में जाओगे तो उनको बेचने में सुख है, बोलते नहीं है, वो भी ज्ञानी नहीं है. और बहन लोगों को खरीद के पहनने में सुख है. तो दोनों की बिलीफ क्या हो गई? दोनों में से एक भी ज्ञानी नहीं है, मगर बिलीफ क्या है? पुराना लेके नया लेने का. समझ में आया? ये सब बिलीफ है. हम कहते हैं बढ़िया फ्लैट ले लेंगे 3-4 बेडरूम का तो वी फील हैप्पीनेस. और बिल्डर क्या कहता है? मैं बेचूंगा तो हैप्पीनेस फील करूंगा. सबकी मान्यता क्या है? यस के नो? सुख होता तो बेचता ही नहीं मकान, है सुख होता तो बेचता ही नहीं मकान, बिल्डर बेचता ही नहीं. वही तो मैं कहता हूँ, सबकी अपनी अपनी ओन बिलीफ है. इट इज नॉट यूनिवर्सल, इट्स इंडिविजुअल एज पर योर सिचुएशन. ये कोई सनातन सत्य नहीं है. मुझे थोड़ा एक बार फिर से आपसे जानना था कि एक इंस्टेंट रिजल्ट मिलता है कर्म का और एक दूसरे जन्म में मिलता है, तो थोड़ा सा दोबारा से एक्सप्लेन करते हैं. जैसे कहते हैं कि कल युग में हम जैसा कर्म करते हैं उसका रिजल्ट एकदम तुरंत मिलता है. मैंने भाई कहा वो थोड़ा डेफिनेशन इज द सेम. जो क्रिया से फल मिलता है वो दोनों फल का ही स्टेप है. देयर इज नो कर्म. एक कर्म फल, आपने जन्म लिया वो भी कर्म फल, खेला वो भी कर्म फल, पढ़ाई किया वो भी कर्म फल, पैसा कमाया वो भी कर्म फल, शादी किया वो भी कर्म फल, बच्चे हुए वो भी कर्म फल, सुख दुख मिला वो भी कर्म फल, बच्चे के बच्चे हुए वो भी सुख कर्म फल, आप बीमार हो गए वो भी कर्म फल, डॉक्टर के पास गए वो भी कर्म फल, और ऊपर गए वो भी कोई जगह कर्म है. समझ में आया? कर्म इज इनविजिबल
एंड कर्म फल इज विजिबल एंड विजिबल। मैंने पहले भी कहा कि डेफिनेशन में लाइन ऑफ demarcation. So don't create the confusion in your mind. Definition of karma and karma. डेफिनेशन को समझो पहले। मैंने पहले कहा मैं हर बातों में पहले प्रिंसिपल कहूंगा, बाद में एग्जांपल दूंगा ताकि यू कैन अंडरस्टैंड वेरी इजीली। कर्म भाव से बनते हैं। किससे बनते हैं? जैसा भाव वैसा भाव, जिसका भाव बिगड़ा इसका भाव बिगड़ा। भाव इज इनविजिबल and thought, speech and action is visible. Okay? दोनों चीज क्या है? थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन की बात कर रहे थे, एक इंद्रिय, पंच, 2 3 4 5 6 एक से 5 तो इसका मतलब क्या ये समझना चाहिए कि जितने भी ह्यूमन बीइंग है यूनिवर्स में, इन सब का बिगिनिंग तो वहीं से हुआ, एक yes से हुआ। 100%। और अब वो It's a law of nature. सो एवरीबॉडीज बिगिनिंग इज फ्रॉम एक इंद्रिय। Yes 100%। और जैसे कर्म होते हैं और उसी हिसाब से फिर वो दूसरी इंद्रिय को भी नहीं। From 1 sense to 5 sense is a totally law of evolution, controlled and governed by the law of nature without cause and effect. नहीं, अभी जैसे बहन बात कर रहे थे, हमने बताया वो अलग चीज है। यहाँ से एक इंद्रिय में गया, इसीलिए मैंने बताया। But first time you are coming as a creature from 1 sense to 5 sense, it is a birth nature. It is not cause and effect. But once you coming in a human life with 5 senses, then after you create the cause, then you can go anywhere, either 1 to 5 sense, or animal, or god and goddesses, or left. then you come back to ह्यूमन लाइफ। क्योंकि कर्म तो यहाँ करना है, और कोई जगह कर्म का फल है, कर्म नहीं है। ये एग्जाम यहाँ है। अगर आप 4 गति में घूमना चाहते हैं तो भी एग्जाम यहाँ करना है, और 4 गति छूटना है तो भी एग्जाम कहाँ देना है? ह्यूमन लाइफ पर। एग्जाम यहाँ है, बाकी सब रिजल्ट है। इसीलिए मोक्ष सिर्फ ह्यूमन लाइफ पर है, क्योंकि एग्जाम यहाँ है, बाकी तो एग्जाम है ही नहीं। देवलोक में भी नहीं जा सकते क्योंकि एग्जाम में नहीं है। तो फिर और रिजल्ट का रिजल्ट, एग्जाम का रिजल्ट आएगा तो फिर यहाँ आएगा, एग्जाम देंगे फिर रिजल्ट आएगा, फिर एग्जाम देगा फिर रिजल्ट आएगा। तो 4 गति में से घूमने के अलावा आपको मोक्ष में जाना है, उसकी भी एग्जाम ह्यूमन लाइफ में रहेगी। तो ये मोक्ष के बाद में देखिए ये एक इंद्रिय से 5 इंद्रिय वाली साइकिल चालू रहती है या फिर वो दैट इज लास्ट क्लोज। When you pass the exam in a nature will not give you the birth. बट आपने कर्म किया है तो कुदरत आपको लाइफ देगी, बॉडी देगी, सर्कमस्टेंसेस देगी, सफरिंग देगी, दैट्स इट। बट देयर इज नो कॉज, नो इफेक्ट। इट इज टू बी कॉल्ड ए मोक्ष, salvation forever. Forever. No need to come back again to this. No. तो इसका मतलब ही नहीं फिर तो फिर अगर वापिस आना है तो फिर तो डेफिनेशन ऑफ मोक्ष इज अ परमानेंट स्टेटस, इट इज नॉट टेम्पररी। सोल इज परमानेंट एंड रियलाइजेशन ऑफ सोल इज टू बी कॉल्ड ए मोक्ष। इट इज ऑल्सो, मगर जहां तक आत्मा का अनुभव नहीं किया है वहां तक जन्म मरण के चक्कर में घूमना है। भले आत्मा को मानते हैं मगर रियलाइज नहीं किया है तो कर्म बनते रहेंगे, जन्म मरण होते रहेंगे। समझ में आया? और आत्मा की अनुभूति के लिए अज्ञान को निकालना पड़ेगा। अज्ञान क्या है? मैं शरीर हूँ, मन वचन काया मैं चला रहा हूँ, सत्ता संपत्ति सबन साधन मेरा है, जन्म जीवन मृत्यु मेरा है, बचपन युवानी बुढ़ापा मेरा है। ये सब अज्ञान है, ये सब कुदरत का था, है और रहेगा। मगर कुदरत ने दिया है बिकॉज ऑफ योर प्रीवियस एग्जाम फॉर ओनली सफरिंग विदाउट ओनरशिप। और जैसे सफरिंग खत्म हुआ सब कुछ ले लेंगे, या बॉडी भी ले लेंगे, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं करते हैं, फिर भी कहते हैं ये मेरा है, ये मैंने किया। तो वो ही अज्ञान है, अज्ञान को निकालना। कंटिन्यूइंग दिस लॉ ऑफ नेचर, तो ये जो एक कंटिन्यू प्रोसेस चलता रहता है कुदरत में कि एक इंद्रिय भी जो है क्रिएशन होता रहता है और सब आगे से आगे बढ़ता रहता है। So it keep on going for everlasting की। First time the creature is coming in this universe as a one sense, it is totally controlled and governed by the law of nature. So what we understand now that this cycle of creation keeps on going. As of now also there must be some
creation is going on there, ekendriyama, chemati, vedran, this keeps on going, you know, Oh yeah, it's a continuous. continuous process keep on going. Yeah. Each and every creatures are coming in this world, and there is a big law of nature. The people they go to the moksha. जितने लोग यहाँ यूनिवर्स में से मोक्ष में जाते हैं, इतने ही क्रीचर्स निगोद में से व्यवहार में आते हैं। निगोद का मतलब जहाँ व्यवहार नहीं है। एकेंद्रिय में आने का मतलब व्यवहार राशि, फिर उस पर ग्रोथ होता है, उसके बाद ग्रोथ नहीं है। अनकॉन्शियस यहाँ आने के बाद कॉन्शियस होता है, 1 सेंस का फील होता है, 2 सेंस का फील, 3, 4, 5 एंड देन ह्यूमन लाइफ में आएगा तो 5 सेंस प्लस बुद्धि, फिर आएंगी ओनर से, डूअर से, सफरिंग, फिर कर्म बंध चालू होगा, फिर चारों गति में घूमना, फिर मार खाना, फिर डिसाइड करना कि वास्तव में मैं जो सुख ढूंढ रहा हूँ वो यहाँ है नहीं, फिर वो अनुभवी ज्ञानी को ढूंढेंगे एक्चुअली वेयर इज द हैप्पीनेस, फिर वो रास्ता बताएंगे, फिर दे फॉलो एंड वन डे रीच द गोल एज अ फ्रीडम फॉर परमानेंट। दैट्स इट, ये प्रोसेस है और सबके लिए कंपलसरी है, कोई ऑप्शन नहीं है। रामकृष्ण महाराज का भी हजारों अवतार हो चुके थे पहले, कोई चमत्कार नहीं हुआ है। Everyone, every living being creature, they have to pass the same process. उसमें कोई ऑप्शन नहीं, मगर जब लास्ट बर्थ होता है तो हम इसको एक ऐसा ग्रेट पर्सन के फॉर्म में मानते हैं, क्योंकि वास्ट एक्सपीरियंस। मतलब ह्यूमन हमारी लाइफ में then we should have this knowledge कि जैसे हमने बताया कि कर्म भाव से बनते हैं, कर्म भाव से बनते हैं। और फिर हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि किस तरह के भाव रखे ताकि कंट्रोल में रहे, ताकि पंचेंद्रिय में एटलीस्ट आपका या तो वापस बर्थ हो या मोक्ष की तरफ जाए। ऐसा इंस्टेड ऑफ गोइंग बैक टू नो एक जगह में, तो शायद ये ज्ञान हमें लेना पड़ेगा। दिस इज व्हाट आई अंडरस्टैंड। या ज्ञान का मतलब होता है विज्ञान, और ज्ञान का मतलब होता है रिलेटिव सत्य। जब ज्ञान रिलेटिव सत्य का है तब तो जन्म मरण लेना ही है, चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो। जब विज्ञान आएगा तो पाप पुण्य नहीं रहेगा, क्योंकि यू आर द ओनली प्योर सोल विथ ऑल काइंड ऑफ इनफाइनाइट पावर एंड नथिंग योर्स इन दिस वर्ल्ड इंक्लूडिंग योर फिजिकल लाइफ टू। तो फिर राग द्वेष करने का संजोग कहाँ बनेगा? तो फिर कर्म कैसे बनेंगे? तो भाव कैसे होंगे? तो उसी का नाम तो मुक्ति है। यस और नो? यूनिवर्सल ट्रूथ साइंस, देन आफ्टर यू आर नॉट क्रिएट द न्यू कॉज। वो नहीं जाना है, नहीं फॉलो किया है थ्रू योर विजन, वहां तक तो कर्म बनेंगे, चाहे पुण्य चाहे, और वहां तक जन्म मरण के चक्कर में घूमना है, कोई चॉइस नहीं। लाइफ इज नॉट चॉइस, only for suffering as per your program, and the body is always player. The player have no any kind of freedom. समझ में आया? प्लेयर के पास फ्रीडम, मोबाइल के पास फ्रीडम, टीवी के पास, वो प्ले कर सकते हैं फ्रीडम। ये बॉडी इज अ प्लेयर गिवन बाय द लॉ ऑफ नेचर एज पर योर प्रोग्राम्स। चाहे फिजिकल बॉडी मनुष्य का दे, एनिमल का दे, God and goddesses का दे, नरकति मा दे, as per your program. But the body is given by the nature as a player. और प्लेयर कभी गलती नहीं कर सकता है, और हम अज्ञानता के बस एक दूसरे प्लेयर के ऊपर राग द्वेष करते हैं। They create the new cause with love and hate inside, and the cycle of reincarnation is continuous. ये जन्म मरण के चक्कर चालू रहते हैं अज्ञानता से, चाहे पुण्य के फॉर्म में या ये विज्ञान नहीं मानूंगे, और ये विज्ञान कुदरत का है, व्यक्ति का नहीं है। मैंने पहले कहा था, मैं जो बात करूंगा यूनिवर्सल ट्रूथ करूंगा, नॉट इंडिविजुअल ट्रूथ। और ये यूनिवर्सल ट्रूथ का कोई क्रिएटर नहीं है, सब कुछ मैंने बताया था इन बिगिनिंग। यस और नो? ये सब टैली करता है वो भी आंसर देके। कुदरत का कानून है, कोई माने या ना माने, इट इज कंपल्सरी फॉर एनी लिविंग बीइंग क्रीचर, क्योंकि शरीर ही कुदरत का है। क्योंकि नहीं मानेगा तो भी कोई फर्क नहीं होगा, कानून तो लागू होगा। कोई कहता है मैं पुनर्जन्म को नहीं मानता हूँ, फिर भी होगा। कोई कहता है मैं कर्म को सिद्धांत को नहीं मानता हूँ, फिर भी कर्म की भुगतान है। कोई कहता है मैं आत्मा को नहीं मानता हूँ, फिर भी पुनर्जन्म होगा। तो आपके मानने न मानने से क्या फर्क होगा? कुदरत का कानून सबके लिए लागू होगा, मानो या
when you born in this universe because of nature, और कहते हैं मैं नेचर को नहीं मानता हूँ, कुदरत कहती है पंच महाभूतों का शरीर मेरा है, जिंदा रखने के लिए हवा पानी खुराक भी मैं लेता हूँ, यस और नो, और जीवन के हर प्रकार के सुख दुख के संजोग भी मैं प्रोवाइड करता हूँ। फिर कहते हैं मैं आपको तो नहीं मानता हूँ, तो नहीं मानो, पर सफरिंग इज देयर। कुदरत का कानून हमारी तुम्हारी मान्यता के ऊपर काम नहीं करता है, सबके लिए क्या है, इक्वल।